वाई इज देयर नो पाकिस्तानी ध्रुव राठी? अच्छा, ये सवाल पिछले दिनों ट्विटर पे भी काफ़ी चल रहा था और फिर लोकल पॉडकास्टर्स को लोग घसीट रहे थे कि एक तरफ ये हैं और एक तरफ ये है। फिर इस पे सैयद मुज़म्मिल शाह ने बहुत डिटेल्ड वीडियो भी बनाई विच वाज वेरी रेलेवेंट एज वेल एंड आई एग्री टू अ लॉट ऑफ पॉइंट्स। बहुत सारी चीज़ें जो मैं बोलना चाहता हूँ, तो अब मैंने एक सॉर्ट ऑफ टॉर्च जो है सैयद मुज़म्मिल को पकड़ा दी कि यार आप ये बातें करें, मैंने नहीं करनी। देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट हैपन इन पाकिस्तान एंड इट्स नॉट सेफ टू टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो मैंने सॉर्ट ऑफ हामी भर लिए भाई, यहाँ इस आवाम के लिए जान नहीं देनी, हीरो बनने का कोई शौक नहीं है। सो मुज़म्मिल टॉक्स अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स that I talk to myself internally, and I wish there was space in Pakistan safe enough कि आप वहाँ वो बातें कर सकते थे, but clearly नहीं है। So सवाल पे चलते हैं। Concern over lack of educational YouTubers in our community. Uh, Greetings of the day. I hope you're in good health. I will jump straight to the point. I have few concerns that I would like to discuss at length. Our YouTube community is overwhelmingly filled with cringe content creators with only a few exceptions. You're among top 1% of those exceptions. Thank you so much. While I understand that YouTube is a business and content creators are there to earn money, I can't help but notice that across the border, numerous YouTubers are focused on educating and informing their audience. Many of them take significant risks by crossing red lines against the government and political circles to spread awareness. For instance, look at Dhruv Rathi and what he has achieved. He has set up a positive army on WhatsApp to spread his educational videos and awareness messages, reminding Indians of their rights and informing them about the government's shortcomings. The argument that he lives abroad and wouldn't survive in India holds no merit as his family lives in India. It's not just Dhruv. Journalists like Ravish Kumar, Samdesh Bhatia, and Karan Thapar are also taking bold steps. They have propaganda channels like we do, but they also have many good ones. My question is, where are our good ones? For every Karim Minati, we have Daki Bhai. For every Elvish Yadav, we have Nadir Ali. But where is our Dhruv Rathi? We all know the problems in our country, yet no one, whether overseas or domestic, has the courage to research and publish the acts of atrocities and corruption. We merely hold our powerless leaders accountable, who themselves are incapable of enhancing significant change. Our country is filled with roasters and trollers. Moreover, we lack educational YouTubers. Your explained series is a good start, but I understand that you have multiple commitments and may focus on more lucrative content. You have mentioned that for technical information about any product you prefer Indian channels. Sir, why is that? We don't have a proper A-levels coaching channel. Even the channels opened for educational purposes are filled with propaganda and Imran Khan idealization. Why is our community so unlucky? If possible, please create a list of good YouTubers similar to the list of good movies you made. Allah Hafiz. So, brother made a very good question. कि भाई यहाँ पे अब जिस तरह इंडिया में अगर क्रिंज कंटेंट है तो साथ ही साथ एजुकेशनल भी है, तो यहाँ पे सिर्फ क्रिंज है और एजुकेशनल इतना कम क्यों है? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम मैट्रिक्स की बात करें, इंडिया इज़ अ वेरी वेरी बिग मार्केट। तो जब बहुत बड़ी मार्केट होती है तो उसका एजुकेशनल पाए भी फिर उतना ही बड़ा होता है। क्रिंज भी बड़ा है तो एजुकेशनल भी बड़ा है। अब पाकिस्तान वैसे ही इतनी छोटी मार्केट है जहाँ पे आपके जो इंटरनेट कंज्यूमर्स हैं, आई थिंक वो 8 से 9 करोड़ हैं। इंडिया में दिस इज़ 10 टाइम्स मोर। तो उसमें फिर हर चीज़ में चाहे वो क्रिंज हो या चाहे वो एजुकेशन हो, वो भी फिर 10 टाइम्स मोर होगा। प्लस देयर इज़ मोर एजुकेशन देयर, तो फिर वहाँ पे एजुकेशनल इंक्लिनेशन भी ज़्यादा है। सो दैट कन्वर्ट्स इनटू गुड नंबर्स अगर आप एक चैनल को चलाना चाहते हैं। ज़ाहिर है अब चैनल चलाने के लिए आपको फाइनेंस भी चाहिए होता है। इन यूट्यूब की जो डायनामिक्स हैं, इनिशियली आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, चाहे वो एक छोटे से फ़ोन में हो या एक प्रोडक्शन सेटअप में हो, इन्वेस्टमेंट तो है। एंड देन इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू मोनेटाइज। उसके लिए फिर ज़ाहिर है आपको महीनों नहीं तो साल भी लग ही जाता है। एंड देन यू कैन री इन्वेस्ट इन टू योर बिजनेस, और फिर वो ज़ाहिर है आपकी अपनी है। ध्रुव का मुझे सेटअप इसलिए अच्छा लगता है कि वो अकेला करता है, बाहर से कर रहा है, उसने पीछे ग्रीन स्क्रीन लगाई हुई है, सामने कैमरा। फन फैक्ट, ध्रुव ऑलवेज यूज टू शूट विद अ फोन अंटिल ही हैड टू डू अ नेटफ्लिक्स सीरीज, और नेटफ्लिक्स की रिक्वायरमेंट थी कि जी ये कैमरा कम अज़ कम इस लेवल का होना चाहिए, एंड दैट्स व्हेन ही इन्वेस्टेड इनटू अ कैमरा। दिस इज़ व्हाट माय एडिटर टोल्ड मी। वरना वो फ़ोन से ही चल रहा था, एंड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैं भी फ़ोन से ही चलता था, सेल्फी वीडियोस बनाता था, एंड देन आहिस्ता आहिस्ता फिर इन्वेस्ट किया। खैर, तो यू हैव टू एज अ बिजनेस you have to make an economic sense.
और जाहिर है सबको जाहिर है दाल पानी भी चलाना है। तो बिकॉज इंडिया की ऑडियंस पूल बड़ा है तो उनका एजुकेशनल पूल भी बड़ा है, तो वहाँ पे अगर कोई एजुकेशनल चैनल भी चलाना चाहे तो उसको उसके मनपसंद ऑडियंस मिल जाती है बिग इनफ कि उसकी सस्टेनेबिलिटी हो जाती है। तो ये तो आ गया सस्टेनेबिलिटी पार्ट। अच्छा, आपने लिखा कि जी मुझे कोई टेक्निकल चीज़ चाहिए तो मैं इंडियन चैनल्स, भाई आते ही वही हैं। फॉर एग्जाम्पल अब ये मेरा जो नथिंग फ़ोन है, अगर मैं जब इसको ओवरसीज़ यूज़ करता हूँ तो ये बहुत डेटा यूज़ करता है और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि बैकग्राउंड ऐप्स भी बंद करने के बावजूद वो डेटा मेरा लाइक हंड्रेड्स ऑफ MBs विद इन अ मैटर ऑफ मिनट्स जा रहा था। तो फिर जब मैंने सर्च किया, और नेचुरल इंक्लिनेशन होती है कि आपको अगर कोई एक्सप्लेनेशन आपको अपनी ज़बान में मिल जाए तो आप ज़ाहिर है उसकी तरफ ज़्यादा जाते हो। अब पाकिस्तान में मुझे उसका कोई मिलता ही नहीं है तो नेचुरली फिर वो इंडियन ही भाई भाई कोई मिलता है। आइए दोस्तों आपको बताते हैं, तो वो दोस्तों से जो है ना कनेक्ट बन जाता है। अंग्रेज़ी भी बहुत कंटेंट मिलता है, लेकिन अगेन जैसे कि मैंने कहा कि उर्दू में बात या हिंदी में बात ज़्यादा बेहतर समझ आती है। सो नेचुरली वही आपको कंटेंट मिल जाता है और दुनिया भर में भरा हुआ भी बहुत है उसका कंटेंट। अब आप बोलेंगे कि हमारे यहाँ क्यों नहीं है, तो हमारे यहाँ अगेन पीपल गो फॉर इजी मनी, कि जो चीज़ें करना आसान है या जो ट्रेंड है बस ट्रेंड को फॉलो करो। नई चीज़ करना, इनोवेटिव काम करना या जिद्दत लाना वो बहुत कम देखा गया है। टेक्निकल चैनल्स मैंने देखे हैं पाकिस्तान के भी जो सिखा रहे होते हैं फ़ोन की रिपेयर हो गई या कुछ भी हो गया, लेकिन बहुत कम है, उसके नंबर्स भी बहुत कम है। फॉर एग्जांपल आई केम अक्रॉस दिस चैनल, पाकिस्तानी चैनल, जो कि ये जो ट्रांसपोर्टरों की जो बसेस होती हैं वो रिव्यू करता है। हीनो की बस हो गई या फलानी बस हो गई, फैसल वड़ाइच कह रहा हूँ, सॉरी, फैसल मूवर्स और वड़ाइच तैयारा दोनों मैंने मिक्स करके फैसल वड़ाइच बना दिया, देखो सुनो जानो वाले। तो वो रिव्यू करते हैं और उसके हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स में व्यूज़ हैं, क्योंकि एक हमारा बहुत बड़ा जो पूल है वो ट्रांसपोर्टर इंडस्ट्री से जो है, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री से मुंसलिक है, उससे जुड़ा हुआ है, तो वो देखते हैं। सो इंडस्ट्रीज बिल्कुल एग्जिस्ट करती हैं, उसके वो भी हैं, लेकिन लोग ट्राई नहीं करते। उस बंदे ने ट्राई किया, उसका लग गया। सो ज़्यादातर हमारे यहाँ लोग देखते हैं दूसरा क्या कर रहा है, अच्छा उससे बन रहा है, चाहे वो मेरी एक्सपर्टीज़ ना भी हो तो मैं फिर भी करूँगा। मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मैंने देखा यार इतने सारे कुकिंग के चैनल चलते हैं तो मैं भी बनाता हूँ, लेकिन उसमें फिर बहुत टाइम देना पड़ता है और बहुत सारे और चीज़ें होती हैं जो मुझे नहीं समझ आई और इवेंचुअली वो नहीं चला। सो बेहतर यही है कि आपको जो चीज़ आती है उस पर ज़्यादा फोकस करें, ना कि दुनिया में क्या चल रहा है उसको फॉलो करें। एनीवे, ये तो सारी टेक्निकल चीज़ें हैं और मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है कि जैसा भी है इंडिया में फिर भी डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है, और अभी आपने हालिया इलेक्शन में भी देखा, उसमें आपने रिजल्ट भी देखा, उसमें जो सेपरेटिस्ट हैं वो भी जीत गए हैं, जो मुस्लिम्स हैं जो कि कश्मीर की ज़्यादा बात करते हैं वो भी जीत गए हैं, और हर तरह की आपको वॉइसेस मिलेंगी लोकसभा में आने वाले दिनों में, राइट। इट्स अ फंक्शनल डेमोक्रेसी एट द एंड ऑफ द डे। और हमने वहाँ कभी ये नहीं सुना कि वीगो आके उठा लेगा या फिर ये कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा। अब देखें पाकिस्तान में चीज़ें कितनी नॉर्मलाइज हो जाती हैं आसानी से, कि एक चीज़ जो कि बहुत बड़ी ह्यूमन राइट वायलेशन है कि आपको बग़ैर सबूत के या बग़ैर किसी मतलब साहब का मूड हुआ तो आपको उठा लिया, एंड देन नोबडी कैन डू एनीथिंग अबाउट इट। तो वो इतना नॉर्मलाइज हो गया कि उसको अब जोकिंगली लोग सॉफ्टवेयर अपडेट कहते हैं। आप दुनिया के बदतरीन से बदतरीन मुल्क में भी ये एग्जाम्पल नहीं सुन सकते और ये नहीं हो सकती, मगर हमारे यहाँ बड़े आराम से होती है और हम आए दिन देखते हैं और लोग खुशियाँ भी मनाते हैं अगर सामने वाली पार्टी का लीनिंग जर्नलिस्ट उठा लिया गया है, हाँ भाई कैसा लगा, हो गया अपडेट, जबकि ये सबका कंसर्न होना चाहिए, मगर यहाँ पे नॉर्मलाइज है। सो जब आपने आवाज़ घटाना जो है इतना नॉर्मलाइज कर दिया है कि उस पर किसी ने बोलना नहीं, उल्टा मीम्स बनने हैं, तो कौन आवाज़ उठाएगा। तो इसी वजह से ये तो सीधा सीधा चीज़ है। दूसरा ये कि आप बात करो तो किस पे करो। अगर ध्रुव राठी बनना है पाकिस्तान का तो आप किसको चैलेंज करोगे। यहाँ पे जो द पावर्स दैट भी हैं उन एरियाज़ में तो आप जा ही नहीं सकते। आप क्या मिलिट्री के ख़िलाफ़ बात करोगे, या आप जो है मौलवियों के ख़िलाफ़ बोलेंगे, या आप जो है जुडिशरी के ख़िलाफ़ बोलेंगे। आप जहाँ भी बोलेंगे, देखो जहाँ पे भी तौहीन के कानून बने हुए ना वहाँ पे आप जा ही नहीं सकते, तो उन्होंने बनाई इसलिए कि हम पे कोई बात ही ना की जाए। तो जब आप बात करोगे तो फिर आपका क्या होगा ये आपको भी पता है। तो जहाँ पे इस तरह के मामलात हों, जहाँ पे जर्नलिस्ट तक फ्री ना हों, और इतने केसेस में इन सो मेनी केसेस जर्नलिस्ट उठाए भी गए हों, तो वहाँ पे एक यूट्यूबर की क्या औकात है कि वो आके कुछ बोलेगा। अब फिर वो क्यों करेगा जब लोगों ने आगे से मीम ही बनाने हैं और मजाक ही उड़ाना है। देखो जब आपके पीछे पब्लिक होती है ना,
तो फिर आपको बहुत सपोर्ट भी मिलती है और हिम्मत भी मिलती है कि यार मेरे साथ पब्लिक भी है। एक लीडर की अगर हम बात करें तो लीडर भी आगे इसीलिए लीड करता है ना कि भाई वो किसी को लीड कर रहा है, लेकिन जब उसको पता है कि यार पब्लिक ने मेरे पीछे आना ही नहीं है और मैंने अकेला जेल में सड़ना है या ये होना है या वो होना है, तो लीडर भी बोलता है खल्ली वल्ली मैं अपना टाइम पूरा करूं, मैं अपने 4 पैसे बनाऊं और आगे निकलूं। और यही चीज़ फिर आपको हर जगह दिखती है। नो बडी ओन्स दिस कंट्री। इस कंट्री में वैसे ओनर बहुत हैं, मगर उसकी ओनरशिप जो वो वाली असल ओनरशिप है ना, वो कोई नहीं लेता। हर बंदा अपना काम छोड़ के दूसरा काम कर रहा है। क्रिकेट की मिसाल देख लेना, खेलने गए थे क्रिकेट, लेकिन क्रिकेट छोड़ के सेल्फियां भी चल रही हैं, निहारियां भी चल रही हैं, शॉपिंग भी चल रही है, फैमिली वेकेशन, जिस काम के लिए गए वो नहीं। तो ये चीज़ आपको यहाँ हर डिपार्टमेंट में दिखेगी। जज बोलेगा मैंने डैम बनाना है, राइट। अब बस ये कि मेरे काम तक कोई क्वेश्चन ना आए, अकाउंटेबिलिटी ना हो, तो मैं दूसरे काम में घुस जाता हूँ, मैं ये कर लूँगा। बस किसी तरह मैं रिटायरमेंट तक अपने पर्क्स एंड प्रिविलेजेस वो करूं, फिर उसके बाद मैं समेटूं, मैं बाहर चला जाऊं। तो जब सबने यहाँ टाइम ही गुजारना है तो फिर कोई क्यों ध्रुव राठी बने यहाँ पे, जब सबने अपनी दिहाड़ी लगानी और आगे निकल जाना है। सो इट्स अ फेल्ड कॉज ना। एक तो होता ना कि कॉज है, कॉज में जान है कि हाँ यार जान भी लगाए बंदा, उस पर रिस्क भी ले, लेकिन जहाँ पता है कि जिससे बात करनी है वही सीरियस नहीं है और पीछे जो है वो भी सीरियस नहीं है, तो फिर मैं बीच में क्यों हल्ली वल्ली यार अपना काम करूँ, मैं आगे पीछे निकलूँ। तो जब माहौल इस तरह का होगा ना तो कोई भी ध्रुव राठी बनने का शौक नहीं करेगा। और ये कहना कि ध्रुव राठी जर्मनी में रहता है, आपने सही कहा कि उसकी फैमिली इंडिया में रहती है। अब यहाँ पे ऐसे भी हुआ है कि भले बंदा बाहर है, पीछे फैमिली भी उठा ली गई, कोई कुछ नहीं कर सकता। सो इट्स अ लॉस्ट कॉज। तो किसी को ज़रूरत नहीं है हीरो बनने की, ना मुझे भी नहीं शौक है, और भी बहुत सारे लोग हैं। पीपल डू अंडरस्टैंड कि यार ये चीज़ें गलत हैं, इस पर होनी चाहिए, बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स नॉट वर्थ कि आप अपनी जान झोंके में लगाएं। और मतलब जिस तरह कल सवात में वाक़या हुआ हो, फिर आपके ऊपर जो है ना फिर कोई भी लेबल लगा के भाई इसने फ़लानी चीज़ जलाई है, इसने फ़लानी चीज़ कही है, और आपकी वीडियो आ जाएगी, दुनिया देखेगी आपकी वीडियो, लेकिन उस पर फिर भी कुछ नहीं होगा। और इंटीरियर मिनिस्टर कबाब पराठा खाएगा, घर चला जाएगा। तो भाई किसके लिए मरना है भाई, कोई ज़रूरत नहीं है मरने वरने की। तो जब इस तरह का माहौल हो तो वहाँ पे नहीं बनते। फंक्शनिंग डेमोक्रेसीज में फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस तरह की चीज़ें। अब देखिए ना, आर्ट जो है वो एक एक्सप्रेशन होता है, वो आपका रिफ्लेक्शन होता है सोसाइटी का। तो यहाँ पे फिल्में बैन हो जाती हैं। कितनी फिल्में आप पिछले 4-5 सालों में उठा लें, ज़्यादा फिल्में बैन हुई होंगी बनिस्बत उनके के जो आई होंगी, फॉर वट एवर रीज़न कि जी इसने फलाने टॉपिक को टच किया, इसको किया, उसको किया। तो बेसिक आर्ट का एक्सप्रेशन ही नहीं है, कोई डायलॉग ही नहीं है। किसी ज़माने में जियो पे बड़ी बड़ी चीज़ों पे डायलॉग हुआ करते थे। गांधी साहब का पूरा शो आता था, उनको चैलेंज किया जाता था, फिर वो भी जवाब देते थे। वो डायलॉग आहिस्ता आहिस्ता मिटता जा रहा है। अब जो है ना बस एक ही साइड है, राइट, माइट इज़ राइट वाली साइड है, एंड दैट इज़ द ओनली साइड। यही चीज़ आप पॉलिटिक्स में देख लें। आप अभी मैं पीटीआई की तारीफ़ करूँ तो नीचे इतने कमेंट आएंगे, अभी मैं कुछ बोलूँगा फिर आप देखिएगा क्या होगा। तो पोलराइजेशन बढ़ गई है। वो माशरे जहाँ पे इतनी पोलराइजेशन हो कि घर के अंदर भी पोलराइजेशन आ जाए, खा वो मज़हब के नाम पे हो, खा वो पॉलिटिक्स में हो, खा वो किसी भी चीज़ में हो, वो फिर कुछ बचता नहीं। अरे बाबर आजम की ट्रोल आर्मी मौजूद है यहाँ पे, तो और बंदा क्या ही करेगा किसी से डायलॉग। तो इसी वजह से जब आप दूसरे किस्म का कंटेंट देखते हैं, चाहे वो पॉडकास्ट के नाम पे, मतलब ऐसे भी पॉडकास्ट हैं, मतलब अब लोगों ने बना लिया कि भाई 2 माइक रख दो, 2 मग्गे रख दो, पॉडकास्ट हो गई। उसमें बस ये पूछना जी आप कमाते कितना है, या आपने फलाने फिल्म में कितना पैसा लिया, या आपने अमेजोन से कितना, बस कमाइयों पे नज़र है लोगों की। और लोग सुनना भी यही चाहते हैं क्योंकि ऑडियंस फारिग है। ऑडियंस ही आपकी जब इतनी थकी हुई हो, जिसने लोगों के घरों में ही झांकना है कि जी इसके घर में आज इसने अंडे से नाश्ता किया, या इसकी बीवी नाराज़ है, या उसने अपने हस्बैंड को क्या गिफ्ट दिया। कल मैं देख रहा था वो किसी ने वो अपने हस्बैंड को प्राडो गिफ्ट कर दिया, वो रो रहा है खड़ा हुआ। अरे भाई तेरा काम था देना। खैर अब कौन जेंडर रोल्स की बात करे। पब्लिक देखना यही चाहती है, फ्लैशी चीज़ें कि कहीं से गिफ्ट मिल जाए। ऐसे भी टिकटॉकर मशहूर हुए कि भी फ्री आईफोन, फ्री अब देखे ना हमारा मुकाबला ध्रुव राठी से नहीं है, हमारा मुकाबला जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स है। जमजम इलेक्ट्रॉनिक दुनिया का, नॉट जस्ट पाकिस्तान का, दुनिया का 42वां मोस्ट सब्सक्राइब चैनल है। वो करते क्या है, वो 4-5 अजीब से उन्होंने कैरेक्टर रखे हुए हैं। कभी वो डॉली चाय वाला ले आते हैं, कभी वो जुड़वा सिख ले आते हैं, कभी वो बेचारा एक मोटा सा है उससे डांस करवाते हैं, कभी कोई छोटा काला पीला नीला, बस यही करते रहते हैं। वो आईपैड फेंकते रहते हैं। उनके कितने 60 मिलियन है। तो पब्लिक ही यही है यार। अब इस पब्लिक को आप बताओगे कि तेरे राइट्स क्या हैं, कि भाई तेरे साथ गलत क्या हो रहा है, कि तेरी डिसइनफ्रेंचाइजमेंट हो रही है या एलिट कैप्चर जो है तुझे यहाँ पर, वो बोलेगा भाई मुझे को मस्ती चाहिए, मुझे देखना है डकी भाई ने नाश्ते में क्या खाया, या वियतनाम के ट्रिप में वो कहाँ कहाँ गए। लोगों को जब शौक ही, जब जैसी अवाम वैसे यूट्यूबर।
तो जैसी आवाम है तो फिर वैसे ही कंटेंट आ रहा है। तो आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते जहाँ पे एजुकेशन नाम की कोई चीज़ नहीं है, यहाँ पे क्लास टीचर को पेन की स्पेलिंग लिखने नहीं आती। मैं एक ऐसे इंजीनियर के साथ भी दोस्त रहा हूँ जिसको इंजीनियर लिखना नहीं आता था, और वो एक इतने बड़े इदारे में इतनी बड़ी पोस्ट पे, मैं नाम नहीं ले सकता, कि वो कितना फ्री का पेट्रोल लेता है। खाली मैं अगर मैं आपको यही बता दूं ना, मैं 20 साल पुरानी नहीं, 15 साल पहले उसको महीने का 300 लीटर पेट्रोल फ्री था, जिसको इंजीनियर लिखना नहीं आता और वो इंजीनियर था। तो भाई अब जहाँ पे ये हाल हो वहाँ पे नहीं बन सकते ये वाले चैनल्स। बनाया था ना मैंने एजुकेशन चैनल, कितने कितने सब्सक्राइबर हैं उसके? 300 भी नहीं है। 1 करोड़ रुपया खर्च किया उस पर, किया ना मैंने अपनी तरफ से। नहीं देखते यार, पब्लिक नहीं देखना चाहती। आई रिमेंबर देयर वाज दिस किड, उसने एक एजुकेशन चैनल बनाया है, और वो जिस तरह खान अकेडमी में ब्लैक स्क्रीन पे सिखाते हैं वो भी सिखाता है, और उसका बड़ा न्यूट्रल सा एक्सेंट है, यू कांट टेल कि इट्स अ पाकिस्तानी गाय। तो वो उसने मुझे बताया था, बच्चा ही है वो भी 20-22 साल का, कि मेरी जो 80% ऑडियंस है वो साउथ इंडिया से है। तो डू आई नीड टू मेंशन कि ये पाकिस्तानी चैनल है, बिकॉज आई डोंट वांट देम टू बी कि लाइक नहीं हमें पाकिस्तानी चैनल नहीं देखना। मैंने बोला अगर तुम्हारे चैनल की नीड नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर तुम कैलकुलस पढ़ा रहे हो तो कैलकुलस पढ़ो, ये बताने की क्या ज़रूरत है तुम पाकिस्तान से हो या सोमालिया से हो या कहीं से भी हो। तो उसकी सारी ऑडियंस ही वहाँ की थी। तो एजुकेशनल चीज़ बनाएं, आपको ऑडियंस ही कहीं और की मिलती है, यहाँ के लोग देखना ही नहीं चाहते। मैं बहुत सारी चीज़ें करना चाहता था कि यहाँ पे, अब जैसे मैंने स्पोर्ट्स चैनल बनाया था तो उसका मुद्दा ही यही था कि यार एनीथिंग बट क्रिकेट, क्योंकि क्रिकेट ऑलरेडी बहुत है। तो मैंने उस पर फुटबॉल का भी शो किया, मैंने अपनी जेब से ये यूएफसी फाइटर जो होते हैं, इन यूएफसी फाइटर कह रहा हूँ, मतलब खैर जो यूएफसी में फाइटर होते हैं ना, मैं मतलब यूएफसी का तो पार्ट नहीं है वो, उनको जेब से फंड किया कि यार वो बेचारे अच्छा खाना खाएं, अच्छी प्रोटीन लें, ताकि कोई मेडल वेडल लेकर आएँ। पिकल बॉल मैं पाकिस्तान में शुरू करना चाह रहा था, लेकिन फिर मुझे पता चला, अब मैंने अपने लॉयर से पूछा कि स्पोर्ट्स कोई नया अगर इंट्रोड्यूस कराना है तो उसकी रजिस्ट्रेशन, उसकी फेडरेशन बनाने का प्रोसीजर क्या है। जितना लंबा प्रोसीजर था, मैंने बोला भाई रहने दे, मैं दुबई में खुल लूँगा। तो वो चैनल लोग देखते ही नहीं थे, क्रिकेट में देखते थे वो। तो मेरी ख्वाहिश थी क्या दूसरे स्पोर्ट्स भी प्रोमोट हो। हमें क्यों हमेशा अरशद नदीम बस जेवलिन जब उसके कंधे पे होता है तभी याद आता है ओलंपिक में, बाकी 4 साल वो पता नहीं किस हाल में है, हमें पता ही नहीं होता। या वो जो बेचारा एक सियालकोट का बॉडी बिल्डर था जो वेट लिफ्टिंग में बहुत आगे तक पहुंच गया था, फिर आई थिंक वो ब्रॉन्ज लिया था उसने, या नहीं ब्रॉन्ज भी नहीं लिया था, वो हमें सिर्फ ओलंपिक में ही क्यों नजर आते, बाकी 4 साल वो क्या करते। आई वॉन्टेड टू प्रिपेयर एन आर्मी, वाली नहीं, कि यार जो कि अगले 4 साल बाद मेडल ला के दे, किसी पे काम करना है। तो मैंने उन पे फाइटर्स पे काम किया कुछ महीने, फिर जाहिर है फिर वो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी भी देखनी होती है आपने यार, कि लोग चैनल नहीं देख रहे, मैं भी जेब से फाइटर को मैं कह रहा हूँ तू तिक्के खा, 4-4 अंडे खा। सो या आई ट्राई टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स मैन, बट ये वो सोसाइटी ही नहीं है। गलत मुल्क में हम पैदा हुए हैं, या गलत मुल्क में हम गलत चीज़ें करना चाह रहे हैं। यहाँ पे आप लोगों को वही दिखाएं, क्रिंज व्रिंज चीज़ें, फ़ोन फेंकें, फ़ोन पे बिकते हैं सब। मरहूम आमिर लियाकत का शो देख लें, या फाद मुस्तफ़ा वाला जीतो पाकिस्तान, ये जीतो पाकिस्तान वाली आवाम है, ये उसी पे ही आएगी, तो उस पर लगा के रखें, ये देखते हैं दबा के। पढ़ाई वढ़ाई से इनका कोई लेना देना नहीं, ना इनके आबा व अजदाद करें, उनको अंगूठा छाप है, अंगूठा लगाना आता है। ज़िंदगी में पता नहीं, मुझे एक रिसर्चर की ज़रूरत थी, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ मैं अपना एक्सप्लेन्स वाला है ना उसको मैं बहुत रेगुलर करूँ, मुझे वो बनाने में मज़ा आता है। मैं आपको अगर अपना इनबॉक्स दिखा दूँ ना, कि जिस इंसान ने यही रिसर्च नहीं की कि यार नौकरी लेते हुए बॉडी ऑफ टेक्स्ट भी कोई चीज़ होती है, खाली ईमेल्स पे सिर्फ रेज्यूमे बगैर पढ़े डिलीट की मैंने, और कोई 30-40 सिर्फ इसी तरह की थी। तो ये हाल है हमारे पढ़े लिखों का, जिनको जॉब लेना नहीं आती, रोना पूरा आता है कि जी शहबाज शरीफ आ गया, नौकरी नहीं मिल रही। शहबाज शरीफ ने तेरे को इंटरव्यू कराना था, तो खुद लोगों में स्किल नहीं है, और ये हमारे पढ़े लिखे लोग हैं जिनमें स्किल नहीं है, फिर आप दूसरे तो छोड़ ही देना वो किस लेवल पे ऑपरेट कर रहे होंगे। तो जहाँ पे लोगों का अपना ये हाल हो कि उन्होंने कुछ सीखना नहीं है, समझना नहीं है, तो वो कोई एजुकेशन चैनल देख के क्यों समझेगी। अगर उसको आप समझाओ कि जी जो तुम टैक्स देते हो, डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स, या भी बजट आया है, तो बजट की जो एलोकेशन है, एक तरफ शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि जी कमर कस लें, सैलरी क्लास को चूस रहे, दूसरी तरफ जो है ना गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी बढ़ा दी, पार्लियामेंटेरियंस की बढ़ा दी, सब कुछ, मतलब पीएम हाउस का रेनोवेशन का बजट बढ़ा दिया। अरे भाई 1 साल नहीं पेंट कराओ, नलके वलके ठीक करा लो, अगर ख़राब हो गया कमोड वमोड वो सही करा लो, मतलब ज़रूरी है रेनोवेशन हर साल होनी है उस घर की। मतलब जिस घर में फाके पड़े हों उस घर में पेंट नहीं होता भाई, उस घर में पहले रोटी का इंतज़ाम होता है, यहाँ उल्टा ही निज़ाम है। दूसरा देखें, अगर ये सैलरी क्लास को बेचारों को और टैक्स लगा दी, और जो यार एक ऑर्गेनाइजेशन है जो परफॉर्म ही नहीं कर रही, कहीं भी सिरे से नहीं कर रही, और आप यूनानिमसली सबकी तनख्वाह बढ़ा दो। कौन सी कंपनी में ऐसा होता है? जैसे मेरी कंपनी है ना, मेरे को 20 एम्प्लॉयज़ हैं,
होने 2 चाहिए, 3 चाहिए, लेकिन 20 हैं। मैं चाहता हूँ यार चीज़ें स्केल अप हों, बढ़ें। जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी उसी को मिलेगा ना, या सबको मिल जाएगा रेज। मगर यहाँ पे है ही नहीं कोई। भाई तुम्हारा परफॉर्मेंस रिव्यू क्या है, अप्रेजल क्या है, तुम्हारा क्या रहा है, कितने तुमने इनोवेटिव स्टेप्स लिए हैं पिछले साल में, कोई कुछ है ही नहीं, बस सबकी बढ़ा दो। अब ये समझाने बंदा बैठ जाए, कौन सुनेगा यार। वो लोग बोलेंगे यार मस्ती चाहिए हमें। और मुझे लोग बोलते हैं कि यार अब वो आपकी वो मस्ती वाली वीडियोस हम मिस करते हैं। मैं कह रहा हूँ भाई अब ज़िंदगी में सीरियस होने का टाइम आ गया, थोड़ा सीरियस हो जाओ, मजाक वाला टाइम हो गया। तो वो कहते नहीं, हमें मस्ती ही चाहिए, हमें छोड़ें यार, आप ये क्यों समझा रहे हैं। खैर, तो जहाँ आवाम का ये रद्द अमल हो वहाँ पे नहीं बनता। एंड सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने शुरू में ही कही, यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। उठा लिए जाओगे, हैशटैग ही बन के रह जाओगे। और यहाँ पे हर हफ्ते कोई ना कोई हैशटैग बन रहा होता है। तो किसी को शौक़ नहीं होता अपने बीवी बच्चों को दुख में छोड़ के जो है ना नॉर्दर्न एरियाज़ की सैर को निकल जाए, समझ रहे हैं। तो जहाँ ऐसे हालात हो वहाँ ध्रुव राठी नहीं बनते। और पब्लिक भी फिर उसी तरह की है, पब्लिक मीमबाजी में ज़्यादा आ गया ना। तो मीमबाजी वाली आवाम के लिए फिर मीमबाजी वाला कंटेंट ही चलेगा। सो क्रिंज कंटेंट बनाना, या जिसको लोग कहते हैं जी डेली व्लॉगिंग क्रिंज कंटेंट है, वो सेफ प्ले है ना। उसमें आप किसी को ऑफेंड नहीं कर रहे, आप सिर्फ अपनी लाइफ दिखा रहे हो। जो आपने वैसे ही सुबह से लेकर शाम तक करना है, बस उसको डॉक्यूमेंट करना है। तो उसमें नो ब्रेनर कंटेंट है, और आवाम का भी ब्रेन नहीं लगना, राइट। तो वो बस देख रहे हैं, अच्छा ये सुबह उठा, अब्बू से नाराज़गी हुई, बहन से लड़ाई हुई, अच्छा जी अब ये है, अब इस गाड़ी में बैठे हैं, अब ये लेने जा रहे हैं, अब हम मार्केट गए हैं। इस पे ना एक शो है मंक, यूके का शो होता था। मैंने तो खैर नहीं देखा, मेरा दोस्त बहुत शौक से देखता था। उसने मुझे बताया था 2008 में एक एपिसोड थी। तो उसका क्रक्स ये था कि मियाँ बीवी कमरे में लड़ रहे होते हैं, और वो लड़ते 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 बाहर लिविंग रूम में आते हैं, तो सोफे पे 2-3 लोग बैठे होते हैं। तो वो कहते हैं तुम लोग कौन हो? कहते हैं आपकी ऑडियंस है हम। तो इट वॉज बेसिकली अ सैटायर इनटू द फ्यूचर, के आने वाले वक्त में, उस वक्त खैर बिग ब्रदर तो आता ही था, तो वो शायद उसको लेके बनाया हो कि लोग दूसरों की ज़िंदगियां देखेंगे। और आज हम देखते हैं सारा दिन बैठ के, सिस्टरोलॉजी ने आज ये किया, डकी भाई ने आज ये किया, या माँ सफदर ने ये किया। इट्स इजी कंटेंट, नथिंग, कोई सोचना भी नहीं है। वो देखे ना डेली क्यों आता है, उसमें कोई एडिटिंग ही नहीं रिक्वायर्ड है, बट चॉप लगाना है आपने। ना आपने उसमें एनिमेशन डालनी है, ना आपने उसमें कोई गिमिक्स करनी है, ना आपने उसमें कोई लूप लगाना है, कुछ भी नहीं करना, बस चॉप करना है सिर्फ। सुबह 10 बजे, फिर 11, 12, 13, 14 वट, और रात को वीडियो अपलोड, सुबह उस पर मिलियन व्यूज़ आ गए। अब वो यार रोज़ के अगर आपको 300, 400, $500 रोज़ के इस तरह आ रहे हैं जिसमें आपने कुछ नहीं करना, तो आप क्या करोगे? वो करोगे, या वो काम करोगे जिस पे जान का ख़तरा, ज़िंदगी का ख़तरा, जिंदा जल जाने का ख़तरा, सर कलम होने का ख़तरा, वो भी इस आवाम के ऊपर जिसने आपके पीछे सिर्फ मीम बनाना है और कुछ भी नहीं करना। तो क्या चूज़ करोगे आप? इट्स ए वेरी फेयर आंसर। सिमिलरली अगर हम बॉलीवुड की भी अगर बात करें ना, अगर वहाँ पे एक कोई स्टूपिड वॉइस है ना, तो जो सेन वॉइस है वो भी उतनी ही ताकत से आती है। फॉर एग्जांपल प्रोपागेंडा मूवीज़ हम देखते हैं, बॉलीवुड से आए दिन आ रही होती है, या सलमान भाई की क्रिंज मूवी हर साल आ रही होती है, वगैरह वगैरह। लेकिन उस थीसिस का एंटी थीसिस भी उतनी ही ज़ोर से आता है। इस पे एक पूरी डिटेल्ड वीडियो बन सकती है कि आज से नहीं, पिछले 10-12 साल से इंडिया कंसिस्टेंटली, इट साउंड्स लाइक कि ये उनकी पॉलिसी है कि हमें एजुकेशनल चीज़ें जान। कोटा फैक्ट्री का तीसरा सीजन आ गया, ठीक है ना, ओनली अबाउट एजुकेशन, ठीक है। 12 फेल कितनी इंस्पिरेशनल मूवी थी। स्वदेश से लेके आज तक आपको इतना कंटेंट मिल जाएगा। फिर पिक्चर्स आप देख लें, 2013 से वो चल रहा है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो पिक्चर्स देख देख के ही बच्चे इंस्पायर हुए और आज शार्क टैंक पे आ रहे हैं ना। तो आप देख रहे हैं वो पूरा इकोसिस्टम किस तरह बनता है। सीरियसनेस है, देयर इज अ थॉट बिहाइंड इट। एजुकेशनल कंटेंट भी उतनी ही तेज़ी से आता है। ऑल इंडिया रैंक मैंने पिछले दिनों देखी, या लापता लेडीज़ आप देखें, क्या था उसमें, तालीम के ऊपर ही थी ना। सो वो अगर स्टूपिड स्टफ आ रहा है, एल्विश यादव अगर आ रहा है तो उतनी, या बियर बाइसेफ आ रहा है तो उतनी स्पीड से ध्रुव राठी भी आ रहा है, उतनी ही स्पीड से लापता लेडीज़ भी आ रही हैं। तो वो काउंटर हो रहा है। तो जिसने ये देखना है ये देख, किसने देखना है, हमारे यहाँ एक ही चीज़ आ रही है। चाहे आप ड्रामा उठा के देख लें, चाहे आप कोई फिल्म उठा के देख लें, हमें पता ही नहीं होता, फिल्में लग के उतर जाती हैं, फिल्में आके चली भी जाती हैं, हमें पता ही नहीं चलता। लाइक उसमें इतना भी सब्सटेंस नहीं होता कि वो आपकी न्यूज़ फीड पे ही दिख जाए, कहीं पे कुछ भी नहीं होता, क्योंकि उसमें कोई थॉट नहीं होती। वो किसी का ब्लैक वाइट करना होता है तो उसमें बस एक फिल्म बनानी होती है, वो बन जाती है। और ड्रामे में भी कोई थॉट नहीं होती, बस सास बहू का झगड़ा दिखाते हैं, ससुर लाइन मार रहा है बहू पे, या साली पे कोई लाइन मार रहा है, बस इसी में आपने लगा के रखा हुआ है पिछले 20 साल से। और उसका जो एंटी थीसिस है वो आ ही नहीं रहा, क्योंकि पब्लिक में एपेटाइट भी नहीं रही अब।
अच्छा कंटेंट देखने की नहीं रही। अभी उम्रो यार लगी हुई है, इट्स अ ब्रिलियंटली डन फैंटेसी मूवी। लेट्स सी उसके नंबर्स क्या कहते हैं, वो बता देगा आपको कि आवाम की एपेटाइट क्या है। 70 करोड़ की वो फिल्म बनी है, और जब तक वो 200 करोड़ नहीं करेगी वो ब्रेक इवन पे भी नहीं आएगी। तो अब देख लेते हैं वो कितना, दुआएं तो हैं कर ले यार, क्योंकि ये भी एक नया जॉनरा पाकिस्तानियों के लिए खुले। लेकिन अगर हमें देखना ही वही है सलमान भाई की छलांगे, और कमिटमेंट कर लूँ तो नहीं सुनता अपनी, तो फिर आप क्या कर सकते हैं। एंड बाय द वे, इट्स नॉट जस्ट ध्रुव राठी, आई ऑल्सो लव मोहाक मंगल। आई ऑलमोस्ट मेट हिम इन न्यूयॉर्क, बट ही वॉज बिजी विद अदर थिंग्स। और नीतीश राजपूत मैं बहुत शौक से देखता हूँ। तो आपने जैसे कि बोला कि हाँ, आपने ये भी सवाल किया था कि लिस्ट भी बताएं फेवरेट चैनल्स की। सो मेरा जो फेवरेट चैनल अगर पाकिस्तान से आप पूछें, देखो सुनो जानो मैं बहुत शौक से सुनता, बिकॉज आई एम अ हिस्ट्री बफ। फैसल वड़ाई साहब का, आई एम ट्राइंग टू गेट हिम ऑन द पॉडकास्ट, लेट्स सी इफ दैट हैपेंस। और ऑरेंज शॉर्ट्स में बहुत शौक से देखता हूँ। एक अंकल हैं, उनका नाम हमेशा भूल जाता हूँ, सॉरी। वो मर्चेंट नेवी में हैं, तो वो एक शिप में होते हैं, कैप्टन हैं, और वो सी से रिलेटेड, मरीन लाइफ से रिलेटेड, सॉरी नॉट मरीन लाइफ, एक मरीन लाइफ तो खैर वो बायोलॉजी, मरीन बायोलॉजी हो गई, बट वो एक सी लाइफ, एक सेलर की लाइफ के अराउंड वो बनाते हैं। लोगों के जो क्वेश्चंस होते हैं बर्मुडा ट्रायंगल वाले, या सेलर कैसे होता है, या शिप का इंजन किस तरह काम करता है, बहुत अच्छा चैनल, बहुत नहायत ही नफीस किस्म के वो आदमी हैं, और उनकी एडिटिंग बहुत अच्छी होती है, एंड आई थिंक वो खुद करते हैं। तो मैं वो बहुत शौक से देखता हूँ चैनल। और इसी तरह का एक इंडियन चैनल भी है, क्योंकि मैं ड्रेक्स पैसेज पे उन्होंने एक बड़ी अच्छी वीडियो बनाई थी। ड्रेक्स पैसेज, वो ड्रेक वाला नहीं, साउथ अमेरिका के बिल्कुल नीचे, जो नीचे से लोग जाते थे जब पनामा कनाल नहीं बना था, तो वहाँ पे एक बहुत ही ख़तरनाक एरिया आता है समंदर में, उसको ड्रेक्स पैसेज कहते हैं, उसमें बहुत मुश्किल है सर्वाइव करना। सो उसके अराउंड उन्होंने एक बनाई थी। सो एज आई वाज सर्चिंग फॉर ड्रेक्स पैसेज, तो एक इंडियन चैनल भी मेरी नज़रों से गुजरा, जिसके तो 4.5 मिलियन सब्सक्राइबर थे। वही वाली बात है ना, बड़ी आवाम है, बड़ी ऑडियंस है, तो एजुकेशनल पूल भी बड़ा है, तो उसका चैनल अच्छा सर्वाइव कर रहा है, उसको ज़रूरत ही नहीं है ज़्यादा प्रोड्यूस करने की, उसको अच्छे नंबर्स आ जाते हैं, सस्टेन करना आसान है। जैसे तन्मय बता रहा था ना, एक वो जो जिस इंटरव्यू में नाज डेली भी था कि आई थिंक ही वाज टेलिंग अबाउट हिज ओन चैनल के ही एवरेजेस अराउंड $20,000 अ मंथ। अब आप तन्मय के चैनल पे जाएं तो देखें उसमें महीने में कितनी वीडियोस है, मैक्सिमम 4 आती हैं, 5 आती हैं, इससे ज़्यादा नहीं आती। बट $20,000 अ फिगर आई हैव नेवर एवर सीन, आई हैव नेवर इवन सीन 10,000, आई हैव नेवर इवन सीन हाफ, कह सकते हैं, बट नॉट इवन मोर देन दैट। सो आप देख रहे हैं कितना फ़र्क है। सो फेवरेट चैनल्स में ये हो गए। इसके अलावा पाकिस्तानी फेवरेट चैनल्स, इंस्टाग्राम पे हुज़ैफ़ा जो मेरी पॉडकास्ट पे भी आता है, रियली इन्जॉय हिज वर्क। इस तरह के कम हैं मगर हैं ज़रूर। टिकटॉक पे आई केम अक्रॉस दिस गाय, ही टीचेस इंग्लिश, तो वो भी बड़ा अच्छा चैनल है। लेकिन कम है इस तरह की चीज़ें अनफॉर्चुनेटली। सो जैसी अवाम या जैसी सोसाइटी, वैसा ही आपका यूट्यूबर, वैसे ही आपकी फ़िल्म, वैसे ही आपकी सियासत, वैसी ही आपकी क्रिकेट। अवाम टोटली अनप्रोफेशनल है, सीवी भेजती है तो बॉडी ऑफ टेक्स्ट पे कुछ भी नहीं लिखा होता। इसी तरह आपकी क्रिकेट भी अनप्रोफेशनल है कि वो क्रिकेट खेलने जाती है तो क्रिकेट तो बाद में खेलेंगे, पहले तबलीग कर लेते हैं, चंदा जमा कर लेते हैं, फिर न्यारी खा लेते हैं, फिर $25 की सेल्फी ले लेते हैं, फिर टाइम स्क्वायर पे खड़े जाते हैं, फैमिली को भी पूरे लेके चले जाते हैं, फैमिली ट्रिप भी हो जाएगा। मतलब कोहली की बीवी के अलावा तो मैंने आज तक कोई नहीं देखा, अम्मी अब्बू भी उसके गए हों। आई हैव नेवर सीन कोहलीज पेरेंट्स बाय द वे। आप मुझे बताएं, या मुझे कोई ढूंढ के दे कि इंडियन टीम ने इस पूरे टूर्नामेंट के दौरान कितने इस तरह के इवेंट्स किए हैं। फंड रेजर हो गए, गाला डिनर हो गई, ये हो गया वो गया, वो होते हैं मगर टूर्नामेंट के बाद होते हैं। मिड टूर्नामेंट कभी भी इस तरह की कमिटमेंट नहीं रखी जाती, एक प्रोफेशनल टीम तो कभी भी ना करे। मगर जैसा कि मैंने कहा, अनप्रोफेशनलिज्म हमारे अंदर इतना कूट कूट के भरा हुआ है, तो वो आपको एवरी स्टेप ऑफ द वे नज़र आएगा। सो आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। देयर इज सो मच टू से, बट देन अगेन मैं पाकिस्तान में हूँ और मैं यहीं रहता हूँ, और आप यहाँ नहा भी हों तो भी आप सेफ़ नहीं हैं, ये भी बात जहन में रखिएगा। तो खैर, ये एक्सपेक्टेशन जो है आप कहीं और रखें, यहाँ पे वही मिलेगा कि जैसी पब्लिक होगी और जैसी पब्लिक की डिमांड होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप इसका पूरा वर्जन देखना चाहते हैं तो लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। हमारे यूट्यूब चैनल पे पूरा वर्जन मौजूद है, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। शुक्रिया।